جی ہاں، تباہ کن بارشیں، مونسون کا دھواں دھار اسپیل، طوفانی برسات سے ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال ہے۔ مختلف شہروں میں حادثات، 3 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی۔ گجرانوالہ میں 220 ملی میٹر بارش نے شہر کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ مسلسل 12 گھنٹے برسات ہوئی ہے، 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ ڈسکا، بھیرا، کلر کہار، وزیر آباد، کالا باغ، پنڈ دادن خان، ملکوال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، جہلم اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے۔ اہم سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں، گھروں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ بارش ہوئی اور بہت ہوئی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں اربن فلڈنگ۔ گجرانوالہ میں برسات کا 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 220 ملی میٹر بارش، مسلسل 12 گھنٹے برستے بادلوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جی ٹی روڈ ہو یا سیالکوٹ روڈ، گجرانوالہ سے لے کر آوان چوک تک ہر گلی، ہر محلہ تالاب بن گیا۔ کرنٹ لگنے اور مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ نوشہرہ ورکا میں رائس مل کی چھت گر پڑی، مزدور جان سے گیا، 2 شدید زخمی ہوئے۔ ڈسکا، بھیرا، کلر کہار، وزیر آباد، کالا باغ، پنڈ دادن خان، ملکوال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، پھالیا اور کروڑ لال عیسن میں بھی بادل جم کر برسے۔ سڑکوں، گلی محلوں اور گھروں میں پانی جمع ہو گیا۔ جہلم اور سیالکوٹ میں بھی نشیبی علاقے زیر آب، مرکزی شاہراہیں ڈوب گئیں، گلیوں میں تالاب کا منظر۔ ابھی تو ٹریلر ہے، مونسون کا یہ اسپیل 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ گجرانوالہ میں 16 گھنٹے کی بارش نے پورے شہر کو دریا میں تبدیل کر دیا۔ 250 ملی میٹر بارش سے 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹا۔ بارش تھمنے کے بعد نکاسی آب کی کوششیں جاری ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے محسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن بتائیے، شہر کی کیا صورتحال ہے؟ گجرانوالہ میں گزشتہ 16 گھنٹے سے طوفانی بارش کا سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے پورا شہر جو ہے وہ پانی ہو گیا ہے۔ مختلف شہری علاقے جو ہیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ گوندوالا روڈ ہو، نمانیہ روڈ، سول اسپتال روڈ ہو، سینٹر ٹاؤن مارکیٹ، پیپلز کالونی، راہ والی، گرجاگ باغ، باغنپورہ، ہر جگہ پہ اس وقت 3-3، 4-4 فٹ جو ہے وہ پانی کھڑا ہے۔ لوگوں کو جو ہے پریشانی کا سامنا ہے، معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہیں۔ لوگ اپنے گاڑیوں کو دھکا دے کے گزرنے پہ مجبور ہیں، گاڑیاں لوگوں کی بند ہو چکی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کے مطابق 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ 10 سال کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے بارش کا۔ اس وقت پہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، میں سینٹر ٹاؤن مارکیٹ میں موجود ہوں، ہر طرف پانی ہے۔ کاروبار مکمل طور پر جو ہے وہ مفلوج ہے، لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو گئے ہیں۔ تب جب ہماری بات ہوئی ضلعی انتظامیہ سے تو ان کا کہنا تھا کہ واسطہ اہلکار اور دیگر جو عملہ ہے شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے پانی کی نکاسی میں مصروف ہے۔ تاہم اب کی صورتحال یہ ہے کہ متعدد جو علاقے ہیں شہری اور دیہاتی علاقے، اس کے علاوہ جی ٹی روڈ ہے، وہاں پہ 3 سے 4 فٹ تک پانی کھڑا ہے۔ جی محسن، بہت شکریہ، آپ ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ گجرانوالہ سے متعلق آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ڈسکا اور گرد و نواح میں وقفے سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ مزید بتائیں گے سماجی نمائندے عثمان حیدر۔ جی بالکل، ڈسکا شہر اور مضافات میں گزشتہ 10 گھنٹے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث اس وقت پورا شہر ندی نالوں، دریاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ گلیوں میں پانی جمع ہو چکا ہے، محلوں میں پانی جمع ہو چکا ہے۔ ٹریفک کی روانی پوری طرح متاثر ہے، موٹر سائیکل سواروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پیدل چلنے والے شہری جو ہے وہ بھی شدید پریشان ہیں۔ جو شہری ہیں وہ گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں، کاروباری زندگی جو ہے وہ بری طرح مفلوج ہو چکی ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ ڈسکا شہر میں دکانیں بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں۔ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے ڈسکا میں بوسیدہ نکاسی آب کا جو سسٹم ہے وہ نکارہ ہو چکا ہے۔ انتظامیہ اس کا نوٹس لے اور جلد نکاسی آب کے حوالے سے اقدامات کریں تاکہ ہمیں مشکلات سے بچایا جا سکے۔ جی پاک پتن کے نواحی گاؤں 33 ایس پی میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی ہے۔ ملبے میں دب کر 2 بچے جاں بحق اور ماں زخمی ہو گئی۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق بچوں میں 7 سال کا عثمان اور 9 سال کی نور فاطمہ شامل ہیں۔ امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمی خاتون کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔
जबकि लाहौर में मानसून की बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई है। मूसलाधार बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ। गुलशन रावी में फैक्ट्री की छत गिर जाने से 4 अफराद जख्मी। वाल्टन में अधूरे सीवरेज मंसूबे ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। देखिए सामिया सईद की रिपोर्ट। लाहौर में मानसून की मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। वक्फे से होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों के साथ साथ पोश इलाकों में भी पानी जमा हो गया। नश्तर टाउन, गुलबर्ग, जौहर टाउन, गुलशन रावी, समनाबाद, माल रोड और दिगर शाहराहें ज़ेर-ए-आब। बंद रोड पर प्लास्टिक बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिर गई। रेस्क्यू ने मलबे तले दबे 4 अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर मदीना कॉलोनी में सीवरेज पाइपलाइन की तब्दीली का मंसूबा शहरियों के लिए अजाब बन गया। सड़कों पर बारिश और सीवरेज के पानी ने आमदोरफ्त खतरनाक बना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का मौजूदा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके बायस शहरियों को मजीद बारिशों और मुमकिना अर्बन फ्लडिंग के लिए तैयार रहने की हिदायत की गई है। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में बारिशों का सिलसिला जारी है। 8 मकाम के नवाही गांव सालखला क्लाउड बर्स्ट से 4 रिहायशी मकानात तबाह और 2 मोटरसाइकिलें भी नाले की नज़र हो गई हैं। खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे समा के नुमाइंदे राजा साजिद। जी बिल्कुल, वादी नीलम में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। जिली हेडक्वार्टर 8 मकाम के नवाई गांव सालखला नाले में क्लाउड बर्स्ट की वजह से नाला सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से 4 रिहायशी मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। लोगों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। फलदार दरख्त भी नाले की नज़र हो गए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल जो है वो नाला अपने साथ बहा कर ले गया। 4 रिहायशी मकानात, फलदार दरख्तों समेत लोगों के फसल और माल मवेशी नाला अपने साथ बहा कर ले गया। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची के इलाके लांडी कायदाबाद में 3 साल की बच्ची के कत्ल का मुकदमा, बच्ची की गिरफ्तार चची और उसके भाई को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत मुलजिम नादिर और सकीना रो रो कर बच्ची के वालिदैन से मुआफ़िया मांगते रहे। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि दौरान तफ्तीश मुलजिमान बच्ची के कत्ल का इतराफ़ कर चुके हैं। अदालत ने मुलजिमान को 4 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ा बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया है। कहा, बानी की बहन का बयान पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मुआरका हक़ में भारत के खिलाफ तारीखी फतह नसीब की। यही है कि ये 3 महीने पुराना कोई इंटरव्यू था। नौरीन बीबी जो भी उसने एक्सप्रेस किया है ये उसका ज़ाती एक ओपिनियन है, पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला ने रहम करके मारे का हक जतवाया है और हर पाकिस्तानी इस बात पे फ़ख्र महसूस करता है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाबिल तस्लीम है। कोई दुश्मन पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। एक स्टेटमेंट से कुछ नहीं हो सकता। मैं सारे लोगों से एक बात की रिक्वेस्ट करूँगा कि फौज की कुर्बानी हो और उनके शुहदा पे लबकुशाई ना करें। अगर आप अपने ज़ाती मुफादात को पीछे रखेंगे तो मुल्क भी मजबूत होगा, ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट और पुलिस लाइन्स का दौरा किया। शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। यादगार पाकिस्तान की तारीखी अहमियत को सराहा। इस्लामाबाद पुलिस की पेशा वराना सलाहियतों की भी तारीफ की। कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदी पर। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद पहुँचे। फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। ईरानी वजीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मेहमान वजीर को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट की तारीखी अहमियत पर ब्रीफिंग दी गई। इस्कंदर मोमिनी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल समेत तहरीके पाकिस्तान के रहनुमाओं के मुजस्समे देखे। शक्कर पड़िया से इस्लामाबाद शहर और मारगला के हसीन पहाड़ी सिलसिले का नजारा भी किया। मेहमान वजीर दाखिला ने पुलिस लाइन इस्लामाबाद का दौरा भी किया, जहां इनके एजाज में शानदार परेड का एहतमाम किया गया। इस्कंदर मोमिनी का वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा परेड का मुआयना। ईरानी वजीर दाखिला ने नुमाया कारकर्दगी पर एहलकारों में इनामात तकसीम किए, जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाकिस्तान और ईरान के कौमी परचम पेश किए गए। कमरुल मुनव्वर, समा इस्लामाबाद। अब NCCIA ने सिफारत खाने के एहलकार जाहिर करके लोगों को लूटने वाला 12 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है। गैंग ने सिफारत खाने के नंबर्स पर
डायवर्जन भी लगा रखी थी। मजीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे कासिम अरशद। जी बिल्कुल, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो सिफारत खानों के नाम पर नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाने के सुहाने ख्वाब दिखाता था और इसके साथ साथ जो है वो लोगों से पैसे ऐंठता था। इसके साथ साथ ये जो गैंग था ये सिफारत खानों का एहलकार अपने आप को दायर करता था। इसी पर मज़ीद जानते हैं डायरेक्टर NCCIA पंजाब मोहम्मद अली वसीम, इनसे बात करते हैं। 6 से ज़ायद सिफारत खानों ने या हमें कंप्लेंट्स की थी कि एक इस तरह का गैंग मुतहरक है जो मुख्तलिफ लोग उनके पास आते हैं जो उनके विक्टिम्स हैं, और उन्होंने आगे कंप्लेन की है कि जो सफारत खाने के लोग हैं वो हमसे ना सिर्फ पैसे भी ले लेते हैं बल्कि वो हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा। तो जब उन्होंने इन हाउस इन्वेस्टिगेशन की तो एक ऐसे गैंग का इंकशाफ हुआ जो सफारत खाने के टेलीफोन नंबर इस्तेमाल करता था, उससे मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाई हुई थी और उसी इस्लामाबाद की गर्दनुमा में बैठ के वो लोगों के साथ एक फ्रॉड में मुर्तकब था। उस पर हमने बड़ी मेहनत करके ये गैंग ट्रेस किया है, इस गैंग को अरेस्ट किया है और अब तक 12 अफराद गिरफ्तार हैं। जो मज़ीद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे जा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन का जो अमल है वो भी उसका आगाज़ कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर NCCIA पंजाब, इनका ये कहना है कि जो गैंग हैं इनकी उम्र 20 से 35 साल की उम्र के दरमियान थी, जो अब NCCIA की गिरफ्त में है। जी कासिम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची मंगू पीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से 2 साल के बच्चे अजान के अगवा का ड्रॉप सीन, वालिद का दोस्त ही मुलविस निकला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम एहतिशाम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा से बाजियाब कराया गया था। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइए क्यों अगवा किया था, क्या रकम का तकाजा करना चाहता था? बिल्कुल, 50 लाख रुपए इस पे जो है पुलिस का कहना है कि तावान तलब किया गया था। और जो 2 साल अजान है, इसके जो वालिद हैं उनका दोस्त है मोहम्मद एहतिशाम, ये इस वारदात का मरकजी मुलजिम है। इसने अपने साले और एक और शख्स जो है इफ्तिखार अहमद के साथ मिलकर ये वारदात की। इफ्तिखार जो है घरों में इनका सहूलतकार है। इफ्तिखार को ही सबसे पहले हिरासत में लिया गया था, जिसकी खबर जो है समा ने ब्रेक की थी। इफ्तिखार की निशानदेही पर ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। मुलजिमान ने निजी सोसाइटी से अगवा किया, 50 लाख रुपए तावान मांगा। मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जब इस पे काम किया तो इन्होंने खौफ के मारे बच्चे को छोड़ दिया, जो पुलिस ने बाजियाब करा लिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल।